Yes, so we are going to start chapter number 17, but before we, sorry, chapter number 19, but before we begin that, we are going to discuss what are adverbs. We'll recapitulate, हम recall करेंगे, revise करेंगे कि हमने adverbs किए थे वो क्या होते हैं. After that, we'll begin with the new chapter, right? Now, who's going to tell me what are adverbs? Keep your books turn over your books or keep them closed. No need to open them right now. Yes, Taran. And that tells more information about the sentence. About the sentence or something else. Sentence में तो verb, sentence में तो noun भी आता है, sentence में तो verb भी आता है. About the time, place, manner. Of what? Of the action. So adverbs give us more information about the verb in the sentence. Sentence में जो verb है, जो action हो रहा है, वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है, कितना हुआ means how much. So it tells us where do we find out this? It is told in adverb of degree. Adverb of degree tells us how much of the work has been done. Suppose if I ask you, have you completed your work? So you say, ma'am, half of it, half. Okay, not, ma'am, some work is left. So that is telling कि आपका काम कितना हुआ है. Half हो गया, थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा हुआ है. All these words are telling you how much of the given verb has been, how much of the given action has been done. Sit down. Have you written note in your diaries, everybody? You have not got it signed. बाद में आप sign करवाएंगे सारे. Okay, right. So an adverb of time tells us, give the answer of what question? Give the answer of how, where, no, how, when, how much. Yes. So the adverb of time, that gives the answer of which word? How, where, when, or how much? Yes, it tells the answer of when. Adverb of time हमें बताता है कि action कब हुआ था. When was the action done? So adverb of time tells us when the action was done. How नहीं बताता वो. How बताता है? Yes, which adverb tells us how the action was done? Adverb of manner बताता है कि action कैसे हुआ था. Where tells us about adverb of place. How much tells us, is told to us by adverb of degree, right? So these words stand for different kinds of adverbs. अलग-अलग adverbs के लिए अलग-अलग words का आंसर मिलता है आपको, अलग-अलग questions का आंसर मिलता है, right? Okay. So now, if I say, Mridul, come here. Oh, Manu, come here. You have to read the first two lines. Come here. First two lines of this passage. My father's name was Kaba Gandhi. He never had a thought of making himself rich, so he left us very little property. Okay, come, can you quickly read this? You'll read faster than that. So he left us very little property. He had no education, but he had learned from
Experience. Experience. He loved him friendly. Okay, Himanshu, you read the first two lines again. First two lines quickly. My father's name is Kaba Gandhi. He never had a thought of making himself rich, so he left us very little property. Now we have all three students have read this. So what is the verb that is done here? क्या action हुआ हमारा भी reading का. Okay. Now I want to tell how I want to tell the manner in which these students read. ठीक है? So I say I'll start with the Upmanyu. If I say Upmanyu read the lines fast. ठीक है? So what is the verb here? Read. और कैसे हुआ action? Fast. So fast here is adverb of manner, right? So this word has told us how Upmanyu read. Now next I talk about Himanshu, right? I say कि हिमांशु ने read किया है, fast read किया है और उपमन्यु से ज़्यादा fast read किया. So I'll say हिमांशु read the lines faster than Upmanyu. Now I talk about Mridul and I say कि मृदुल ने सबसे ज़्यादा fast read किया. Means उपमन्यु से भी ज़्यादा और हिमांशु से भी ज़्यादा. That means Mridul read the lines fastest of right now. Okay. So here we have used the adverb fast. First sentence में हमने fast adverb use किया जो उनके reading का manner describe कर रहा था, right? Second में भी मैंने यही use किया है, fast word use किया है, लेकिन अब मैं उनके reading की जो speed थी, जो fast word था, उसको compare करने लगी हूँ. मैंने किस-किसके reading की speed को fast word को किससे compare किया? उपमन्यु और हिमांशु की reading की जो speed थी, उसको compare किया. उपमन्यु ने fast पढ़ा, हिमांशु ने उपमन्यु से भी fast पढ़ा. So what I have done, this is called comparative. Comparative degrees. You remember we have done in adjectives also. Adjective में भी क्या था? Beautiful, more beautiful, most beautiful, है ना? Tall, taller, tallest, right? So वो थी जब हम compare कर रहे थे किसी adjective को. अब हम compare कर रहे हैं किसको? Adverbs को. Actions के करने के तरीके को हम compare करेंगे किसने कैसे किया. ठीक है? So again what we are going to do today is degrees of comparison. किसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम? Of adverbs. So we are comparing the degrees of the adverbs. Adverbs की degrees को हम we are going to discuss today. हम compare कर रहे हैं adverbs को. So if we are talking about a single person, एक single person के action के लिए हम कोई word use करते हैं, तो हम उसका उस टाइम पे जब तक अकेला उपमन्यु यहाँ खड़ा था, मैंने उसका कंपैरिजन किसी से नहीं किया था, बिकॉज उपमन्यु वाज द फर्स्ट वन. उपमन्यु अकेला एक ही बॉय था, तो उसका मैंने किसी से कंपैरिजन नहीं किया. वो ही वाज वन इन नंबर. कंपैरिजन तो तब हो गया जब उसके साथ कोई और होगा. एक अकेले पर्सन कोई काम कर ही जा रहा है अगर सपोज, तो मैं क्या उसको कंपेयर कर सकती हूँ किसी को? नो. फॉर कंपैरिजन आई नीड एटलीस्ट टू पर्सन्स ना. सो हियर वी आर इनिशियली स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ कौन था? उपमन्यु था. और उसके पढ़ने के उसके एक्शन जो हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या थी? फास्ट पढ़ रहा था वो. तो मैंने एडवर्ब यूज किया अकेले उपमन्यु के लिए फास्ट. बट देन इफ आई कॉल हिमांशु हियर, आई कॉल्ड हिमांशु हियर, मैंने हिमांशु को वहां बुलाया और मैंने हिमांशु को भी बोला कि तुम भी रीड करो. अब मैंने देखा कि हिमांशु जो है वो उपमन्यु से ज्यादा फास्ट पढ़ रहा है, जल्दी पढ़ रहा है. दैट मीन्स कि मैं उसके स्पीड रीड करने की जो स्पीड है उसको किससे कंपेयर कर रही हूँ? उपमन्यु की स्पीड से
कंपेयर कर रही हूँ, दैट मीन्स अब अगर मैं इन दोनों को करूँ तो मेरा हो जाएगा 2, कितने लोगों में कंपैरिजन हो रहा है 2 में. सो व्हेनेवर वी आर कंपेयरिंग एनी टू वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री. दो के लिए हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री. और जैसे हमने एडजेक्टिव्स में सीखा था, कंपैरेटिव डिग्री इज फॉर्म्ड बाय एडिंग er, और er के साथ क्या लगा देना है, देन. तो हियर वी आर फास्ट से हमने क्या बना दिया, फास्टर, और साथ में क्या लगाया, देन. अब अगर हमारा वर्ड आई वाला वाई वाला आता है तो आई er लग जाता है ना. फॉर्म्स ऑफ वर्ब डिफरेंट होते हैं. हु इज दिस? कंपैरेटिव इज सेकंड डिग्री होती है. फर्स्ट डिग्री जब किसी से कंपैरिजन ही नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री. जब किसी के साथ हमने कंपैरिजन ही नहीं किया तब हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री. इसमें हम सिर्फ एडवर्ब लिखते हैं, उसके साथ कोई वर्ड ऐड नहीं करना क्योंकि वो वन नहीं है, कंपैरिजन कर ही नहीं रहे. बट अगर हम दो को कंपेयर करने लग जाते हैं तो इट बिकम्स द कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री कितना में होगा, 2 लोगों में होता है, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सेकंड डिग्री. सेकंड डिग्री को क्या नाम देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं हम उस वर्ड को, उसके साथ वर्ड के साथ er लगा के. जैसे फास्ट के साथ हमने क्या लगाया, er, तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन गई फास्टर. और जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं तो साथ में क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं. व्हाट आर यू राइटिंग? तो हम साथ में क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं. नाउ आई टोल्ड यू कि बाद में अगर हम मृदुल के साथ भी कंपैरिजन करते हैं तो हमारे लोग कितने होंगे, 1 2 3. हम 3 लोगों के एक्शन को कंपेयर कर रहे हैं. सो फास्ट, फास्टर देन. लेकिन जब 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री. थर्ड में जब हम कंपेयर करेंगे मोर देन 2 में तो वी यूज कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर मोर देन 2. 2 से ज्यादा के बीच में जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तब हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री. और सुपरलेटिव डिग्री को बनाना कैसे है, बाय एडिंग est. क्या ऐड करना है हमने उसके साथ, est. एंड सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या हम देन लगाते हैं, वहां पे क्या लगाते हैं, दो. सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगता है, दो. बिफोर द एडवर्ब, एडवर्ब से पहले क्या लगा देना, उसके साथ द लगाना है, और उस वर्ड के साथ क्या लगाना है, est या iest. यहाँ पे मुझे पता है कि द के बाद लाइंस आ रहा है, ये क्योंकि सेंटेंसेस ऑफ डिफरेंट काइंड. व्हेन वी विल डू सम अदर सेंटेंसेस देन इट वुड बी मोर क्लियर टू यू, राइट. सो आपको याद आ गया कि 3 डिग्रीज हम कौन-कौन से करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, तो दोनों में कोई डिफरेंस क्या हुआ, मुझे कुछ थोड़ा सा समझा सकते हैं. कंपैरिजन हमने पहले किया था एडजेक्टिव्स का, अब हम कर रहे हैं एडवर्ब्स का. कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन द डिफरेंस? यस मृदुल. चेंज हमने सेम तरीके से करने हैं, उसके भी पॉजिटिव का कंपैरेटिव वैसे बनना है, इसका भी वैसे बनना है. पर दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, वो किसी की क्वालिटी को कंपेयर कर रहे थे हम, इसकी पर्सन की अपनी क्वालिटी कैसे है, ठीक है. अब हम कंपेयर कर रहे हैं उसके एक्शन को करने के तरीके को कंपेयर कर रहे हैं, हाउ द एक्शन इज डन. और ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स होता है, ये किसके होते हैं, सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर के, बाकी सबके लिए नहीं होते, ठीक है. हाँ जी, यस, दैट मीन्स एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी, किसी की क्वालिटी बताना, और एडवर्ब मीन्स किसी के काम करने की क्वालिटी बताना या काम करने का तरीका बताना. वो उस पर्सन की नहीं होती है. हम उसके पर्सन के बारे में बात कब करते हैं, जब एडजेक्टिव यूज करते हैं. लेकिन उस पर्सन के करने के तरीके के बारे में, जब हम एक्शन के बारे में बात करते हैं, तब होता है एडवर्ब. तो आज जो हम करेंगे दैट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ adverbs, right? Tomorrow I'll show you a video also about this. Today I don't have that speaker with me, right? Okay.